Good morning, students. The next topic that we are going to see is the controlling process. We have already seen what do you understand by controlling or why controlling is essential. Because if you want to compare yourself with standard, then only you will come to know whether you are in correct path or not. So, first now let us move with the controlling process. The very first step that is involved in controlling process is setting of the performance standard. Now, why performance standards are set? So that if criteria are being set, then only with this criteria you can compare your actual performance and you can evaluate your performance. Now, these standards can be quantitative or it can be qualitative standards. Now, what do you mean by quantitative standards? They are expressed in terms of values like cost, revenue, volume, time. So that the comparison can be made easier and meaningful. For example, suppose you are setting the price at which product should be sold. So you are informing your sales staff that the say for example you are into the production of induction cooker. So you are informing your sales staff that the induction cooker will be sold at a minimum selling price of 1500 each. So this is the standard that you have set. And since you have expressed it in terms of cost, so it is termed as quantitative standard. Now, the second standard can be qualitative standard. Qualitative standards, they are the subjective standards which are meant to improve the performance of organization, that is the discipline level that is prevailing among the employees, or what is the behavior of the salespeople, or what is the level of customer satisfaction as far as your brand or your company is concerned. So, the examples of qualitative standards can be like, for example, managers, they can set targets for the sales executive and announce the financial and non-financial incentives for achieving the set target. So that is the qualitative standard. So the very first step is to set the performance standard against which you are going to evaluate or compare your actual performance. Once the performance standards are being set, the second step will be setting the standard of actual performance. Now, for effective control and for easy comparison, the actual performance, they should be measured in same units in which standards are set. यानी अगर आपने cost को ध्यान में रखते हुए आपका परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सेट किया है, तो एक्चुअल परफॉर्मेंस भी आप कॉस्ट बेस पे ही ले सकते हो. दैट मीन्स जो यूनिट है, दोनों के यूनिट सेम है. दैट इज फॉर एग्जांपल सिंपल, आप बीएस के मार्क्स आप अकाउंट्स के मार्क्स के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हो. समझ रहे हो? सिमिलरली जो स्टैंडर्ड है वो दोनों सेम होना चाहिए. सो here that main point is it should be in same unit. The actual performance may be measured either जब आप टास्क कंप्लीट कर रहे हो उसके बाद, या तो आप एक्चुअल परफॉर्मेंस मेजर कर सकते हो, या फिर जब परफॉर्मेंस चल रही है या आप वो टास्क चल रहा है तो उस बीच में भी आप आपका परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हो. ठीक है, जैसे कि सुपरवाइजर, अगर आपने उसको काम दिया हुआ है, ठीक है, आपके प्रोडक्शन मैनेजर को, तो प्रोडक्शन जो हेड है उस टाइम पे, तो लाइक इंस्पेक्टिंग कर सकते हो कि हर पार्ट जो भी मैन्युफैक्चर हुआ है वो सही तरह से हुआ है या नहीं प्रोडक्ट असेंबल होने से पहले. सो दैट इज द मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस. नाउ दिस एक्चुअल परफॉर्मेंस कैन बी मेजर आइदर थ्रू पर्सनल ऑब्जर्वेशन, और इट कैन बी डन थ्रू सैंपल चेकिंग, और बाय प्रिपेयरिंग परफॉर्मेंस रिपोर्ट so that the subordinate performance can be evaluated. So different techniques are available if you want to measure the actual performance. Now, once the actual performance is measured, the next step will be comparison of actual and standard. यहाँ पे आप क्या करते हो कि जो भी आपने actual performance किया है उसको, जो भी आपने standard set किया है उसके साथ आप compare करते हो to find out कि कोई deviation तो नहीं है. तो ये comparison क्यों करते हो? ताकि आपका जो performance है वो easy हो सके. ठीक है, that is it is easy to compare. आप actual जो revenue earn कर रहे हो, it can be easily compared with the targets that are being given to the sales executive. अगर आपने कम अचीव किया है, टारगेट आपने रखा था कुछ और आपको रेवेन्यू हुआ कुछ और, तो आप क्या कर सकते हो, इससे कंपैरिजन से यू कैन फाइंड आउट कि क्या रीजन है जिसके वजह से हम हमारे परफॉर्मेंस को और भी बेटर कर सकते हैं. देन वंस द कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल एंड स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस इज बीन डन, द नेक्स्ट स्टेप विल बी टू एनालाइज द डेविएशन. डेविएशन का मतलब क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन योर एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस. तो हमेशा अगर आपको रीजन जानना है डेविएशन का, तो मैनेजमेंट क्या करती है, यूजुअली एक्सेप्टेबल रेंज ऑफ डेविएशन सेट करती है. अगर वो एक्सेप्टेबल डेविएशन जो आपने परमिसिबल लिमिट सेट किया है, अगर उसके अंदर आपका डेविएशन होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन अगर वो परमिसिबल लिमिट के ऊपर अगर कोई डेविएशन हो रहा है, देन करेक्टिव एक्शंस लेने की आपको ज़रूरत पड़ सकती है.
तो यूजुअली वो एक्सेप्टेबल रेंज जो भी है, ठीक है, अगर आपको एनालाइज करना है कॉजेस ऑफ डेविएशन, तो मैनेजमेंट यूजुअली दो क्राइटेरियाज या दो टेक्निक यूज करती है। एक है क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल एंड दूसरा होता है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल मतलब क्या है, जो की एरिया से ऑर्गेनाइजेशन का आपका, जिसके ऊपर आपके पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस बेस्ड है, ठीक है, तो वो आप की एरियाज फाइंड करते हो, की एरियाज फाइंड करते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन सेंटर अगर क्रिटिकल पॉइंट है मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन का, और सपोज आपका कॉस्ट इंक्रीज कॉस्ट हुआ है, तो सबसे पहले आप कहाँ पे ध्यान जाएगा आपका, कि प्रोडक्शन सेंटर के ऊपर, कि हो सकता है कि प्रोडक्शन कॉस्ट आपका बढ़ गया है, इसके वजह से आपका ओवरऑल कॉस्ट इंक्रीज हुआ है। सो क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल का मतलब क्या है, यू आर आइडेंटिफाइंग दी की एरियाज एंड यू आर फोकसिंग कि वो की एरिया में किस वजह से डेविएशन हुआ है। The second method, that is second technique that is available in order to analyze the deviation is the management by exception. मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन मतलब हो सकता है कि मैनेजमेंट की तरफ से कोई डेविएशन हुआ है या उनके जगह से उनके तरह से कोई डेविएशन हुआ है। सो मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन क्या बताता है कि जो भी एक्टिविटीज़ है, जो मैनेजमेंट, जहाँ पे मैनेजमेंट इफेक्टिव नहीं हो सकती है, वो एक्टिविटीज़ को आप आइडेंटिफाई कर रहे हो, ठीक है। जैसे कि कोई स्टैंडर्ड, अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड मैनेजमेंट ने सेट किया है, या उन्होंने जो प्रोसेस है वही प्रोसेस में ही डिफेक्शन है, या फिर रिसोर्सेज एडिक्वेट अवेलेबल नहीं है, या फिर ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्स्ट्रेंट है, या कोई एनवायरमेंटल फैक्टर्स है जो ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल में नहीं है। तो ये सारे क्या है, मैनेजमेंट की एंड से गलती हुई है, जिसके वजह से आपका एक्चुअल परफॉर्मेंस इट इज नॉट एबल टू मीट द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। So management by exception. So these are the two techniques with the help of which you can identify or you can analyze the cause of deviation. So यहाँ पे अगर आप analyze deviation की तरफ देखो तो एक एरो साइड पे जा रहा है, एक ऊपर जा रहा है। वो क्या इंडिकेट कर रहा है, जैसे मैंने आपको बताया कि एक परमिसिबल लिमिट सेट करते हो, अगर आपका कोई भी डेविएशन उस परमिसिबल लिमिट के अंदर है, विद इन लिमिट है, देन यू कैन कंटिन्यू विद दी वर्क। लेकिन अगर वो परमिसिबल लिमिट के ऊपर आपका डेविएशन जा रहा है, तो व्हाट विल बी योर नेक्स्ट स्टेप, योर नेक्स्ट स्टेप विल बी टेकिंग करेक्टिव action. So this is the final step in controlling process, जहाँ पे you are going to take the corrective actions for all the deviations which are beyond the permissible limit. So ये corrective या preventive actions आप क्यों लेते हो, ताकि ये deviation वापस ना हो और आप standards को effectively and efficiently accomplish या achieve कर सको। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई प्रोजेक्ट आप कर रहे हो, आपको एक डेडलाइन दी हुई है और आप वो डेडलाइन के वो शेड्यूल या जो भी दिया हुआ है वो शेड्यूल के तौर पे आपका प्रोजेक्ट नहीं चल रहा है, और आपको पता चला कि जो अनस्किल वर्कर्स है वो ज़्यादा टाइम ले रहे हैं टास्क कंप्लीट करने के लिए, तो इससे करेक्टिव एक्शंस क्या हो सकते हैं, तो मैनेजमेंट अनस्किल के जगह पे स्किल वर्कर्स को एम्प्लॉय कर सकती है ताकि उनका प्रोजेक्ट टाइम पे कंप्लीट हो सके। सो दैट इज दी करेक्टिव एक्शंस। एंड करेक्टिव एक्शंस लेने पे ही आपका काम खत्म नहीं हो जाता, आपको एनालाइज या रिव्यू करने पड़ते हैं, क्योंकि हो सकता है कि करेक्टिव एक्शंस लेते तौर पे आपको लग रहा है कि कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है स्टैंडर्ड्स में, तो यू विल चेंज दी स्टैंडर्ड। सो आपको जो भी आपने स्टैंडर्ड सेट किया है उसको भी एनालाइज या रिव्यू करना पड़ सकता है। सो दिस इज दी कंट्रोलिंग प्रोसेस। सो विद दिस आई हैव एंडेड विथ माई सिलेबस। विद इन 2 days मैं आपको प्रोजेक्ट के डिटेल्स आई विल बी प्रोवाइडिंग यू, so that we can start on the project work. Thank you.